नमस्कार मंडळी, आपल्या सर्वांचं पुन्हा एकदा माझ्या एंटरप्रेन्युअर एंटरप्राइज अँड स्टार्टअप उद्योजकता आणि स्टार्टअप या चॅनलवर मी आपल्या सर्वांचं स्वागत करतो. आजची जी उद्योजिका आहे ती थोडस मराठी कम्फर्टेबल नसलं, मराठी तिला येत नसल्यामुळे आय विल हॅव टू स्पीक टू हर इन इंग्लिश. आणि आय फॉलोड हर, I chased her for almost a year, and I'm sure that you would definitely pat me on my back for my persuasive skills. But my persuasive skills are not that great if you listen to today's entrepreneur, a young lady, I think, who is almost 4 generations younger than me and who has achieved a success in her first enterprise much more than I have achieved in my life, because she was very clear about the purpose of her life right from the beginning, and very, very firmly, very dedicatedly, very task orientation which is there. And hence she is very busy traveling everywhere, doing a lot of work for the startup and ensuring that her startup continues its success story. So I welcome today's my guest, Akshita Sachdeva. Welcome, Akshita, to my program on YouTube, Enterprise, Entrepreneur and Startup. And it's indeed my great pleasure to talk to you after a long time. I have read a lot about you. I have seen you, and I have read the news about you, and I was very eager to meet you. And I hope that same is there with the audience of this, YouTube channel. So welcome to my YouTube channel. And to start with, I would like you to tell us something about you, your family background and your educational background. Sure. First of all, thank you so much, Anand sir, for having me here, and I'm so glad to be a part of this session today. And जैसे कि आपने बताया, I'm comfortable with both Hindi and English. So Yeah, that anything should be that fine. you Yeah, and your listeners are comfortable, we'll be happy to continue with that. yeah, yes. So just a little bit about me. First of all, do you want me to continue in English or Hindi would be better? You can use both Hindi and English wherever Okay. you are comfortable with a word or something. You feel Sure. it's better in English, explain in English. Go ahead with English. If you feel it's good in Hindi, you are welcome. Absolutely, sure. So, talking about me, my name is Akshita Sachdeva, and मेरा जन्म जो है वो फरीदाबाद, हरियाणा के एक शहर फरीदाबाद में हुआ 1994 में. And उसके बाद मतलब मेरी family, I come from a middle income family, and my mom is into a government job, so she is a deputy manager in New India Assurance, and my dad is a businessman. He runs his own business for stationery and other things. And I, coming from a very humble background, I have seen things from not having things to having things. So that feeling of gratitude and the feeling of that privilege of having things and still having that humility is something that has been with me since my childhood days. And I've seen even my grandfather, who has, while he was in his educational years, I would see him doing a day job for to take care of his family and his younger siblings, and go for a night college because of his love for education. So I think that made me realize how important is it for people to continue their education, and sometimes it would mean working day a whole day and then having your education at night. So I think some of these values that have stayed with me since my childhood are something that each one in my family brings together. Yeah, that's good. And so you are a first generation entrepreneur. Entrepreneurship was not there in a family, but I remember to have read something that early in your career, you started your engineering education, and
towards the end of that education, something happened which made you to think in terms of doing something for the society. So I would like to hear about that incident. Absolutely. So I think everybody in my family comes from an accounting background, and people are all used to, completing their degree in commerce and then going for an employment in the And I accounting think, sector. sorry to interrupt you, but I think your grandmother or grandfather wanted you to be a doctor, right? Absolutely. I think that's what I was about to say. So, Okay. when I was 8 years old, I lost my grandmom because of cancer, So, and I grew up, hearing my grandfather say, if there was a doctor in our family, तो शायद उनकी जान नहीं जाती. And मतलब like छोटी सी 8 साल की बच्ची के मन में वो बात बैठ गई थी. very And I good. always wanted to become a doctor myself. तो मैंने 11th 12th में I studied biology, zoology, botany, everything. And there was one day when I was talking to my zoology teacher, telling her that, this is something what I want to do. I want to work in oncology to make sure ki if I am able to save someone's life from cancer, that is something that would really make the purpose of my life. And So she said, Akshata, it's not always having a doctor in your family. या अगर आपकी फैमिली में कोई डॉक्टर होते और वो भी बचाने के चांसेस जो हैं कैंसर से स्पेसिफिकली तभी बढ़ाए जा सकते हैं जब कैंसर की जांच जल्दी हो सके. And that really stayed with me और मैंने उसके बारे में बहुत सोचा. And then I did my research and I realized while being a doctor is like a really noble profession, but क्या मैं कुछ और कर सकती हूँ where I can contribute more to the lives of people. And that's how I thought I saw the intersection between medicine, technology, and in general how we can create an impact in the world around us. And I thought maybe engineering is something that I should do while keep staying focused on how engineering or technology can be used to uh, help people live better lives. So that's how I switched from being a doctor, which was my dream since childhood, to my degree in engineering in computer science. mhm. No, but during the I think during your computer engineering and all that, something happened which made you to think on a larger societal problems and to find out some solution for that. Absolutely. So when I joined my engineering course, I was very fascinated and I really wanted to be close to the innovation and incubation center that was there in my university. So I did my engineering from Manav Rachna College of Engineering, and they had MRIIC, which was Manav Rachna Innovation and Incubation Center. And that was really the place where I felt I belonged. So that's where I used to be. I used to spend my time learning about things, doing some research, and thankfully they had great mentors to guide us as well. So when I spoke to my mentor around this ambition of building something that could help in early cancer detection, even he was really amazed and wanted to support me in this initiative. But he was like, this will be something that you will start from scratch, and there is I think it would be best since you are really young. So I was in my second year. So he suggested that instead of directly building your own product, why don't you support this team who is working for a project on for visually impaired students, and maybe that would help you gain some sort of understanding of what needs to be there when you are trying to solve a social problem with technology. So वहां से मेरी शुरुआत हुई, एंड मैंने उन टीम से बात की और मुझे पता चला कि किस तरह से मैं बहुत प्रिविलेज्ड रही हूँ एजुकेशन के मामले में. अच्छा स्कूल, अच्छे टीचर्स, अच्छी किताबें. देन आई रियलाइज्ड कि ब्लाइंड बच्चों के लिए और ब्लाइंड स्टूडेंट्स के लिए एजुकेशन बहुत चैलेंजिंग हो जाता है. मतलब डेफिनेटली वो ब्रेल बुक्स से पढ़ते हैं, पर जब वो अपनी हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं, यानी अपने कुछ बैचलर्स डिग्री करना चाहते हैं, डिप्लोमा करना चाहते हैं, तो वो किताबें उन्हें प्रिंट फॉर्म में कभी मतलब हमेशा प्रिंट फॉर्म में मिलती हैं, ब्रेल की फॉर्म में वो अवेलेबल ही नहीं होती. तो उनकी पढ़ाई जो है ऑलमोस्ट 50% लोग वहां से ड्रॉप आउट कर जाते हैं. तो ये सब जब मैंने उस टीम के साथ काम करना शुरू किया, ये सब चीजें हमने रियलाइज की, एंड वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट व्हिच वाज लाइक अ हैंड ग्लव. तो कैसे हम नॉर्मली जब आप
एक साइटेड व्यक्ति पढ़ता है तो कैसे अपनी उंगली से किताब के ऊपर धीरे-धीरे उंगली फेराता हुआ एक-एक सेंटेंस पढ़ता हुआ जाता है। तो मुझे लगा ऐसा कुछ होना चाहिए कि एक ब्लाइंड व्यक्ति भी अगर है या ब्लाइंड बच्चा है, वो अपनी उंगली बस किताब के सामने रखे और किताब खुद से उसे पढ़ के बताए कि मुझ में क्या लिखा है। तो उस तरह से वहाँ से इस चीज़ की शुरुआत हुई एंड हमने एक प्रोजेक्ट बनाया, कॉलेज प्रोजेक्ट जिसका नाम था मैनो व्यू, जिसमें हम मैनो व्यू के ज़रिए, मैनो यानी हैंड और व्यू यानी विज़न, तो हाथ के ज़रिए किसी को विज़न प्रोवाइड करना। Oh, तो excellent. Mm-hmm. मैं उस ग्लव के ज़रिए कोई भी अगर ब्लाइंड व्यक्ति है, वो कहीं पे भी पॉइंट करता है, तो वो वहाँ पे क्या लिखा है, क्या सीन है, उसको डिस्क्राइब करके उसे उस व्यक्ति को बताता है ऑडियो के माध्यम से। और साथ ये ही पूरी साथ आइडिया आपकी ही थी, आपके मन में ये विचार आया और आपने ये आगे बढ़ाया। जी, हम 4 लोगों की टीम थी और जिसमें से मैं कंप्यूटर साइंस से थी, तो मैं सॉफ्टवेयर का काम देखने लगी एंड बाकी हमारी टीम में एक व्यक्ति डिज़ाइन से थे, तो वो डिज़ाइन को लेके प्रोडक्ट डिज़ाइन और किस तरह से पूरा होना चाहिए, उस तरह से उसका डिज़ाइन किया गया। एक जो हमारे व्यक्ति थे टीम में, वो इलेक्ट्रॉनिक्स से थे, तो उन्होंने पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स उसमें क्या-क्या माइक्रो प्रोसेसर्स जाने चाहिए, क्या चिप होना चाहिए, उस सब को बिल्ड किया। तो इस तरह से एक टीम एफर्ट था, लेकिन जो हमारा मिशन था वो सेम था कि हमें ब्लाइंड स्टूडेंट्स के लिए कुछ ऐसा करना है जिसकी मदद से वो खुद से पढ़ लिख सकें और कहीं पे भी ट्रैवल करना है तो आ जा सकें। तो उसमें हमने ऑलमोस्ट फिस्ट के ऊपर ऑब्स्टैकल डिटेक्शन सेंसर्स लगाए जिस और यहाँ पर रिस्ट पर हमने वाइब्रेटरी मोटर दी। तो उसकी ओह, मदद से जब सामने कोई ऑब्जेक्ट आता है तो वो अल्ट्रासोनिक सेंसर्स उसे डिटेक्ट कर लें और वाइब्रेशन के ज़रिए उन्हें हल्का-सा अगर लेफ्ट पे वाइब्रेशन हो रहा है, तो उन्हें पता चल जाए कि मेरे लेफ्ट पर कुछ कोई ऑब्जेक्ट है या कोई व्यक्ति है या मेरे राइट पर कोई है। तो इस तरह से वो एक अनजान एनवायरनमेंट में भी अपने आप खुद से आ जा सकें। तो यहाँ हम्म, से मतलब एक कॉलेज प्रोजेक्ट की तरह मैंने इसे बनाया और चीज़ें मतलब उस टाइम पर मेरे दिमाग में इसको लेकर इतना ही था कि हाँ, मैं एक अच्छे कॉलेज प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ और मैं इसको आगे तक देखना चाहती हूँ कि किस तरह से हम इसे आगे ले जाएँ। चीज़ें तब बदली जब मतलब मैं अपनी टीम के साथ एक ब्लाइंड स्कूल है दिल्ली में, वहाँ पर हम उसकी टेस्टिंग के लिए गए और वहाँ पर एक बिल्कुल छोटा-सा बच्चा हमें मिला एंड उसने हमारा प्रोडक्ट यूज़ किया। प्रोडक्ट भी क्या उस टाइम पे तो प्रोटोटाइप जैसा ही था। तो उसने इसे यूज़ किया और बोला कि मैं अपने पापा से बात करना चाहता हूँ इसके बारे में। फिर उसने अपने पिताजी को फ़ोन लगाया, कहने लगा कि पापा, यहाँ पे ना कुछ साइंटिस्ट आए हैं। उन्होंने हमारे स्कूल के लिए ग्लव्स बनाए हैं और अब मैं खुद से कुछ भी पढ़ सकता हूँ, कहीं भी आ जा सकता हूँ। तो पहली बार उसके पापा को सुन के भी लगा कि ये बच्चा क्या बात कर रहा है और हमारे हम्म, ये सब सुन के हमें बहुत खुशी हुई कि हमने जो थोड़ा बनाया उससे उसको मतलब अपनी लाइफ में कितना एम्पावर्ड वो फील कर रहा था। उसके बाद अचानक वो पीछे मुड़ा, शायद उसके पापा ने कुछ पूछा उससे, फिर कहने लगा कि दीदी मैं ये ले कब पाऊँगा? तो तब वो एक सवाल था जिसका हम चारों में से किसी के पास कोई जवाब नहीं था, तो हम बिल्कुल चुप खड़े हैं उसके सामने। फिर हमने बोला कि हाँ, हम आपको बताएँगे इसके बारे में और बोल के हम वहाँ से आ गए। पर वो सवाल कहीं न कहीं मेरे मन में रह गया कि इस सवाल का जवाब तो होना चाहिए। और हम्म, तब मैंने डिसाइड किया, ये मेरे कॉलेज के 3rd ईयर की बात है। तो तब मैंने डिसाइड किया कि 4th ईयर में 2 मेरे पास मतलब प्लेसमेंट्स थी काफ़ी अच्छे बड़ी-बड़ी एमएनसी आईटी कंपनीज़ के थ्रू, आईबीएम, एक्सेंचर, एचपी। पर मुझे ओह, लगा नहीं ये वो नहीं है जो मैं करना चाहती हूँ। तो मैंने वो जो भी मेरे प्लेसमेंट्स ऑफर्स थे, उनको ना लेते हुए मैंने डिसाइड किया कि मैं इस प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करना चाहती हूँ और मेक श्योर करना चाहती हूँ कि ब्लाइंड व्यक्ति को भी एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट उसी तरह से मिले, जिस तरह से एक साइटेड या एक नॉन डिसेबल्ड व्यक्ति को मिलती है। very great, great, great. Uh, you are you are an IT student. You did your BTech in IT, and as you said, you had many offers in your hand, and you could have very easily got into one of the multinationals or Indian multinationals in IT and all that. But you didn't accept that, and you got into this field, which I think it is a technology which is called as assistive technology, right? And that's something new. And you, though you never wanted, you wanted to be a doctor, but I think you
did something which a doctor can offer even to a blind or to an individual who doesn't have a sight. So it's really, really great. So that was the moment which made you think in terms of becoming an entrepreneur, and that too in what we call as a social enterprise, where profit and money is not the objective, but where only giving something to the society is the main objective. And that too at this young age. I think probably you must be 23, 22 at that point of time, or even younger, but you decided to pursue this. Great, great. Please go on. I also heard some story. You made a presentation in US. I think you went there for your fellowship. We'll talk about that later. But in that presentation, you quoted a story of Deepa something. I think Dipali. that would be something which the viewers of this channel would get many things out of that. So would you please tell us the story again? Absolutely. I think दीपाली की स्टोरी मेरे मतलब इट्स वेरी क्लोज टू माय हार्ट, क्योंकि उस बच्चे के कहने के बाद मैं इस रास्ते पे चलने तो लगी, बट आई थिंक दीपाली वाज द वन जिसकी वजह से मुझे डायरेक्शन मिला। तो जब मैंने डिसाइड किया कि मैं इस डायरेक्शन में काम करना चाहती हूँ, आई रीच्ड आउट टू एक इंक्यूबेशन सेंटर, प्री इंक्यूबेशन सेंटर व्हिच इज कॉल्ड by digital I mean it's by the name Digital Impact Square by TCS Foundation. It's तो a वहां पे Nashik? it's in Nashik, yes. Yeah, we had one of your colleague, this Kalyani Gaikwad, and I had Oh, mentioned your name and she mentioned your name. So please go ahead. Yeah, that is a absolutely. Tata incubator, right? One of the Yes, best in the country. Please go ahead. absolutely. तो टीसीएस का जो टीसीएस फाउंडेशन का जो ये इनिशिएटिव है, उसमें दे चेरी पिक 40 से 50 पीपल हु आर सोशली मोटिवेटेड और वो टेक्नोलॉजी की मदद से सोशल गुड के लिए कुछ करना चाहते हैं, उनको वो चुनते हैं। तो मैंने उनको अप्लाई किया, अपना प्रोफाइल भेजा, मैंने कहा कि मैं इस डोमेन में काम करना चाहती हूँ और मुझे आपका सपोर्ट चाहिए कि मुझे टीम मिल सके, मेंटरशिप मिल सके, गाइडेंस मिल सके। और उनके प्रोग्राम के अंडर पहले 6 महीने जैसे कि आप कुछ बनाइए मत, कोई टेक्नोलॉजी भूल जाइए, आप सिर्फ लोगों से बात कीजिए, यूजर की बात सुनिए, समझिए कि उनकी जरूरत क्या है। क्योंकि एज इंजीनियर्स हम क्या करते हैं, अच्छा कोई प्रॉब्लम दिखी, फटाफट इसको टेक्नोलॉजी से कुछ बना के दे दिया। बट Mhm. उनका प्रोसेस था कि जब हम किसी सोशल चीज के लिए सोशल एंटरप्राइज बनाते हैं, तो वहां पर हमें यूजर की बात सुनना, उनकी बात समझना सबसे जरूरी है। तो वहीं पे उस 6 महीने के दौरान मेरी मुलाकात दीपाली से हुई। तो दीपाली हम मतलब मेरी तरह साइटेड थी अपने कॉलेज के फर्स्ट सेमेस्टर तक। एंड हर बच्चे के सपने होते हैं, कॉलेज का फर्स्ट सेमेस्टर है, कॉलेज शुरू हुआ है, मैं अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करके कितने सारे मतलब बहुत सारे सपने होते हैं, और दीपाली के भी थे। एंड फर्स्ट ईयर के जस्ट बाद जब उसका सेकंड सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर के जस्ट बाद जब उसका सेकंड सेमेस्टर बीए का स्टार्ट होने वाला था, शी लॉस्ट हर आईसाइट। Oh, और वो ऐसा टाइम था कि हम कहते हैं अच्छा ब्लाइंड है मतलब ब्रेल से पढ़ते होंगे। तो अब वो लड़की जिसने आज तक ब्रेल नहीं पढ़ी, उसके बढ़िया लिए है। उसके पेरेंट्स के लिए वो बहुत मुश्किल था। और उस टाइम पे स्पेसिफिकली नासिक इज अ टियर 2 सिटी, तो वहां पे इतनी जानकारी भी नहीं होती कि अच्छा अब बच्चे को कहाँ लेके जाएं। कॉलेज वालों ने बोला कि नहीं, हम इसको अब नहीं पढ़ा सकते अपने कॉलेज में, तो आप देखिए क्या करना है। ट्रीटमेंट चला, हर डॉक्टर को दिखाया, बट फाइनली केम टू अ कंक्लूजन कि अभी शी कैन नॉट बी ट्रीटेड फॉर हर ब्लाइंडनेस। एंड देन शी बट उसमें भी वी सॉ कि दीपाली डिडंट लूज हर करेज। उसने अपने मम्मी पापा को बोला कि मम्मी मुझे अभी और ट्रीटमेंट नहीं करवाना है, आप कुछ भी करके आप पता करो कि मैं पढ़ कैसे सकती हूँ फिर से। Oh, एंड उसके पेरेंट्स ने काफी ढूंढा, किसी ने बोला आप डीएड का कोर्स करा दीजिए, ब्रेल सिखा दीजिए। उसने अपने 2 साल लगाए कि मैं ब्रेल सीख लूं और ब्रेल मुझे अच्छे से आ जाए, फिर मैं शायद अपनी एजुकेशन कंटिन्यू कर पाऊं। इस सब पूछने पुछाने में, सीखने में, सब करते कराते उसे 4 से 5 साल लगे, ट्रीटमेंट सब मिलाकर। 5 साल बाद दीपाली को ब्रेल आती थी। अब वो फिर से एडमिशन के लिए अपने कॉलेज गई कि आप अब मुझे ब्रेल आती है, अब आप मुझे एडमिशन दे सकते हैं। कॉलेज वालों ने बोला हमारे पास तो यही प्रिंटेड किताबें हैं, हमारे पास तो ब्रेल भी नहीं है, आप कैसे पढ़ेंगे। तब उसे mhm. लगा अरे मुझे ये किसी ने बताया नहीं कि ब्रेल सीखने के बाद भी मेरी जिंदगी में बदलाव नहीं आ पाएगा। उसने उसी सेम यूनिवर्सिटी के 12 से 15 कॉलेजेस विजिट किए,
और सभी ने उसको एडमिशन देने से मना कर दिया। And that was a point when she actually lost hope and but there is always a ray of hope once you lose hope. So she finally figured out कि YCMOU, which is यशवंतराव चव्हाण Yes, महाराष्ट्र yeah. ओपन यूनिवर्सिटी, वहां से वो अपना जो कोर्स है, अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर सकती है। देन एनजीओ के सपोर्ट से, कॉलेज से तो उसे वही प्रिंटेड किताबों का ढेर मिलता था, एंड शी यूज्ड टू गो टू एन एनजीओ उसको ऑडियो रिकॉर्ड कराने के लिए। तो लगभग एक 300 पेज की किताब को ऑडियो रिकॉर्ड होने में 4 से 6 हफ्ते जाते थे। उसके बीच में उसके सेमेस्टर एग्जाम्स आते थे और उसके बाद उसका पढ़ने के लिए उसका कंटेंट ही नहीं होता था। तो उस टाइम पर मेरी मुलाकात दीपाली से हुई नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड में, जहाँ पे वो कंप्यूटर ट्रेनिंग एमएससी आईटी का कोर्स कर रही थी। और वहीं पे दीपाली ने बताया कि हाँ, अभी मैं सेकंड ईयर में हूँ, मेरे एग्जाम आने वाले हैं, किताबें नहीं है मेरे पास, पर ये कुछ प्रिंटेड किताबें मुझे स्कूल अपने कॉलेज से मिली हैं। हमने उसकी वो किताबें ली, उसे ऑडियो में कन्वर्ट किया, उसको उसके फ़ोन में लाके दिया कि तुम दीपाली इससे पढ़ना और तुम बताना कि तुम्हें कैसा एक्सपीरियंस रहा। और थोड़े दिन बाद हम ऑफ़िस में बैठ के वहीं डिजिटल इम्पैक्ट स्क्वायर में अपना आगे का बनाने का सब देख रहे थे कि हम क्या डेवलप कर सकते हैं टेक्नोलॉजी में। तभी दीपाली का फ़ोन आता है कि दीदी, आपने जो मुझे कंटेंट दिया था डिजिटाइज़ करके, उससे मेरा सेकंड ईयर का एग्ज़ाम मैं क्लियर कर लिया फर्स्ट अटेम्प्ट में, और अब मैं थर्ड ईयर का फॉर्म भरने के लिए लाइन में खड़ी हूँ। तो मैंने सोचा आपको फ़ोन करके सबसे पहले मैं ये खबर सुनाऊँ। तो वो एक फीलिंग थी, मतलब दीपाली के ज़रिए हमें समझ आया कि क्या-क्या चैलेंजेस हो सकते हैं। क्योंकि आधी जनता, आई थिंक हम अभी भी आज के समय में भी काफ़ी लोगों से मिलते हैं, लोग बोलते हैं, "अच्छा ब्लाइंड?" कुछ लोग ब्लाइंड बच्चों की जगह ब्रेल बच्चे ऐसा भी शब्द यूज़ करते हैं। Oh. तो इस Mm-hmm. लेवल का अनअवेयरनेस भी है कि लोग कहते हैं अच्छा ब्लाइंड है तो ब्रेल से पढ़ता होगा। पर हम ये नहीं सोच पाते कि अगर एक ब्लाइंड व्यक्ति जॉब कर के लिए ऑफ़िस जाता है, तो क्या उसके कलीग उसे ऑफिस के डॉक्यूमेंट्स भी ब्रेल में देने वाले हैं या ऑडियो बना कर देंगे? जब ऐसा नहीं है तो हम क्यों ऐसी जो है सोच रखते हैं? तो उस फेज़ में हमें रियलाइज़ हुआ कि एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट जो है एक ऐसा एरिया है जिसमें ह ब्लाइंड और विजुअली इम्पेयर्ड कम्युनिटी को सपोर्ट करने की आवश्यकता है, एंड उसमें भी किस तरह से प्रिंटेड कंटेंट जो है या हाथ से लिखे हुए नोट्स हैं या कोई डिजिटल कंटेंट है, जैसे आजकल पीडीएफ, इमेज, फोटो के ज़रिए काफ़ी लोग आदान-प्रदान करते हैं कंटेंट का, उसको कैसे एक्सेसिबल बनाया जाए ऑडियो के माध्यम से। क्योंकि ऑडियो मैं भी मतलब मैं भी समझ सकती हूँ, एक ब्लाइंड व्यक्ति भी समझ सकता है, तो ऑडियो एक इंक्लूसिव टूल है कि जो भी कंटेंट है उसको एक्सेसिबल बना के एक ब्लाइंड व्यक्ति को एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट की डायरेक्शन में हम सशक्त बना सकते हैं। Okay. How do you, supposing I have a book uh, written by a best author, every person with a vision has read that, but a blind person has not read. So how that individual who doesn't have a eyesight or who has lost eyesight, how can he or she read that book? एब्सोल्युटली। तो अगर कीबो से पहले, यानी जब हमने ये कंपनी Ebo शुरू is की the product which थी, you have introduced, right? जी, उसके आने से पहले का अगर मैं सिनेरियो बताऊँ तो कोई प्रिंटेड किताब आती है, तो जैसा अगर ब्रेल में बनवानी है, तो आपको उसे किसी एनजीओ के पास लेके जाना होगा जो उस किताब को ब्रेल में कन्वर्ट करके आपको देंगे, या आप ऑडियो में उसे कन्वर्ट करवा सकते हैं, व्हिच इज़ 4 से 6 Yeah. हफ्ते का प्रोसेस एक 300 पेज की किताब के लिए। बट जनरली क्योंकि एजुकेशन का कंटेंट मिलना ही इतना मुश्किल है, तो वो जो नॉवल जिसे हम सब एन्जॉय करते हैं, वो ज़्यादातर एक ब्लाइंड व्यक्ति के हाथ तक नहीं पहुँचती। उसके Mm-hmm. लिए 2-3 ज़रिए हैं कि ठीक है, आपने उसका ऑडियो वर्ज़न बनाया, आपने उसे किसी लाइब्रेरी जैसे सुगम्य पुस्तकालय और बुकशेयर, ऐसी 2 लाइब्रेरी हैं जो ब्लाइंड व्यक्तियों के लिए बनाई गई हैं। तो कोई Mm-hmm. नई किताब है जो कोई चाहता है कि उसको अवेलेबल हो सके, तो वो उसमें अपलोड की जाती हैं डिजिटल फॉर्म में। लेकिन अगर नॉर्मल कोई आप किताब उठाएँ, तो उसको Mm-hmm. एक्सेसिबल बनाने के लिए जो प्रोसेस है वो ना ही पब्लिशर इतना ध्यान देते हैं, ना ही स्कूल, कॉलेज की तरफ से इतना फ़ोकस होता है। तो काफ़ी सारी ऑलमोस्ट 95% ऐसा कंटेंट है जो एक ब्लाइंड व्यक्ति तक, ऐसी किताबें हैं जो उन तक पहुँच ही नहीं पाती। Mm-hmm. So your Kibo has, practically opened all the universe of good, material which is available, and the uh, जो blind है वो उसको आसान से प्राप्त कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं. Is that true? जी, काफ़ी हद तक कीबो जो हम्म. है वो अलग-अलग तरीकों से मिल आने वाले कंटेंट को एक्सेसिबल बनाता है।
तो अच्छा। कीबो एक्चुअली कीबो एक एक्रोनिम है नॉलेज इन अ बॉक्स के ओह, लिए। ओके ओके। और साथ ही साथ कीबो एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ हाँ होता हाँ है होप, आशा हाँ। या उम्मीद। तो ओके। हम इसी तरह से मतलब एक आशा की किरण या उम्मीद की तरह नॉलेज को एक डब्बे में डाल के लाना चाहते थे हाँ जो भी हाँ ब्लाइंड व्यक्ति हैं उनके लिए। हाँ तो हाँ। कीबो जो है वो 3 कीबो के अंदर 3 अलग-अलग प्रोडक्ट्स आते हैं जो कि एक ब्लाइंड व्यक्ति को उसके नॉर्मल लाइफ़स्टाइल में, साथ ही साथ उसके एजुकेशन फ़ेज़ में और साथ ही साथ उसके एम्प्लॉयमेंट फ़ेज़ तक हेल्प करते हैं। तो ओह। कीबो में देखा जाए तो जैसे हमने स्टार्ट किया था एक मोबाइल एप्लीकेशन के साथ जिसमें करीबन 1 मिलियन यानी 10 लाख किताबें बुक शेयर और सुगम्य पुस्तकालय की लाइब्रेरी के सपोर्ट से हमने दी, ताकि कोई भी ब्लाइंड व्यक्ति बुक को बस नाम सर्च करे, उसमें सीबीएसई, एनसीईआरटी, स्टेट बोर्ड सभी बुक्स जो हैं ऑलरेडी उसमें उनको डायरेक्टली अवेलेबल हो जाती हैं। अब रही बात सर ने जैसे बोला अगर सर की नॉवल किसी ब्लाइंड बच्चे के हाथ में आ जाए और उसके पास फ़ोन है, तो वो अपने फ़ोन के ज़रिए उसकी तस्वीर लेकर उसको ऑडियो के माध्यम से सुन सकते हैं। वेरी गुड। हाँ। और जैसे कि हम जानते हैं कि सर की किताबें जो होती हैं मराठी में रहती हैं, तो कीबो की जब हमने शुरुआत की तो इसमें 3 भाषाओं का सपोर्ट था। ये लगभग 2018 की बात है। 2018 में जनवरी 4 को जो है कीबो लॉन्च किया गया लुई ब्रेल डे के दिन। तो उस दिन तब कीबो में इंग्लिश, हिंदी, मराठी इन 3 भाषाओं का सपोर्ट था। एंड हम्म। आज का कीबो जो है वो लगभग 13 भारतीय भाषाएँ सपोर्ट करता है, 60 ग्लोबल बट भारतीय भाषाओं में 13 भाषाओं का सपोर्ट उसमें 13 है। भारतीय भाषा और 60 ग्लोबल। जी, दैट्स अ तो ग्रेट हमारी अचीवमेंट। थैंक यू सो मच सर। तो इंडियन लैंग्वेजेस की बात करें तो इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी, पंजाबी, बंगाली, संस्कृत, उर्दू, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, ओह, आसामीज़ इन सभी भाषाओं का सपोर्ट हमने उसमें ऐड किया दिया। कि कोई भी किताब जैसे सर की किताब है, उन्हें एक स्टूडेंट को जानने की ज़रूरत नहीं है कि ये मराठी है तो मैं कुछ लैंग्वेज चेंज करूँ क्या? बस फ़ोटो लेना है, वो अपने आप उसकी भाषा समझ के उसको चेंज पढ़ हो। के उसे बता देगा कि क्या लिखा है। ओह तो हो इस हो। तरह से लाइफ़स्टाइल की अगर बात करें कि मैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में घर पर हूँ, ऑफ़िस जा रही हूँ या स्कूल जा रही हूँ, तो मैं टीचर के नोट्स रिकॉर्ड कर सकती हूँ आपकी मदद से, ऑडियो नोट्स बना सकती हूँ। कोई किताब पढ़ते-पढ़ते कैसे एक साइटेड व्यक्ति हम अंडरलाइन करते हैं काफ़ी चीज़ों को, साइड में हम्म। नोट्स लिख देते हैं अपने पेंसिल से स्क्रिबल यस करके। तो यस। कीबो मोबाइल ऐप की मदद से एक ब्लाइंड स्टूडेंट वो सभी चीज़ें कर सकता है। ओह। अंडरलाइन कर सकता है, नोट्स बना सकता है, सुन सकता है। पूरी 2 घंटे की अगर ऑडियो लेक्चर उन्होंने रिकॉर्ड किया, उसको जो इम्पोर्टेंट उसमें से 10 या मिनट या 2 मिनट के क्लिप्स हैं, उसको भी वो नोट्स की तरह सेव कर सकता है ताकि उन्हें अपने एग्ज़ाम के टाइम पे जैसे हम अपने नोट्स रिवाइज़ करके फटाफट से एग्ज़ाम देने चले जाते हैं, बिल्कुल हम्म। वैसे ही वो भी कर सकें। तो मोबाइल ऐप की मदद से बेसिकली हम लाइफ़स्टाइल के जो भी चैलेंजेज़ हैं कि रोज़मर्रा की कोई चीज़ है, कोई दवाई का पैकेट है, कोई ब्रोशर है या किसी ने कोई किताब पकड़ाई तो फटाफट से फ़ोटो खींच के सुन लिया, पढ़ लिया कि क्या लिखा है। साथ ही साथ ओके। उसमें बुक्स भी ऐड की। फिर हमें लगा एजुकेशन में यानी अ, अपने आप स्टूडेंट्स तो कर ही सकते हैं फ़ोटो खींचकर, बट कहीं न कहीं स्कूल्स को, कॉलेज को यानी इस बात की जागरूकता होनी चाहिए कि मैं एक ब्लाइंड स्टूडेंट को अगर एडमिशन दे रहा हूँ, तो मेरी कुछ ज़िम्मेदारी है उसके प्रति। तो इसलिए हमने एक नया जो डिवाइस बनाया, वो एक ऑलमोस्ट एक टेबल लैंप जैसा है। एआई पावर्ड पेटेंटेड ओह। टेबल लैंप टॉकिंग टेबल लैंप कह सकते हैं, ओह, जैसा अच्छा। डिवाइस है, जिसके नीचे आप हम्म। कोई भी किताब सामने रखें, किसी भी भाषा में हो, वो पढ़कर बताता है। तो आप अच्छा। ऑडियो के माध्यम से उसे सुन सकते हैं। फिर हमने देखा कि काफ़ी ऐसे बच्चे भी आते हैं स्कूलों में जो कि इंग्लिश मीडियम से नहीं होते और इंजीनियरिंग या बड़े कोर्सेज़ में सीधा उन्हें इस तरह का जो है इंग्लिश मीडियम किताबें दी जाती हैं। तो हमने उसमें ट्रांसलेशन भी ऐड किया कि यदि एक इंग्लिश की किताब है, मैं उसे मराठी में सुनना चाहूँ, तो मैं उसे ट्रांसलेट करके भी दूसरी भाषा में सुन सकती हूँ। साथ ही साथ उसमें डाउनलोड कर सकते हैं आप एक वर्ड की फ़ाइल में, तो हम्म। जो हम नोट्स बनाते हैं या स्क्रिबल करते हैं नोट्स, वो आपको एक वर्ड की फ़ॉर्म में मिल जाता है, तो आप उसको पूरा एडिट कर सकते हैं। एंड साथ ही साथ काफ़ी कॉलेजेस की जैसे दीपाली के साथ हुआ, उसके कॉलेज ने उसको प्रिंटेड किताबें दे दी और बोला कि आप इसे अपने हिसाब से देख लीजिए रिकॉर्डिंग का या कैसे भी, पर हम यही दे सकते हैं आपको।
उस केस में अगर दीपाली के स्कूल में या उसके कॉलेज में कीबोर्ड रहता, तो वो डायरेक्टली वहाँ जाकर उसे पूरी किताब स्कैन करके एक बार बस डाउनलोड एज़ ऑडियो करना है, और जो चीज़ होने में उसको 4 से 6 हफ्ते लगते थे एक किताब के लिए, अब वो आधे घंटे से कम में उसके हाथ में ऑडियो की फॉर्म में MP3 के फॉर्मेट में उसको वो मिल जाती है। तो स्कूल्स और कॉलेजेस को भी को कैसे हम ब्लाइंड बच्चों के लिए इंक्लूसिव बना सकें कि उनको हम्म। एक्सेसिबल कंटेंट प्रोवाइड हो स्कूल की तरफ से या कॉलेज की तरफ से। उसके लिए हमने वो एजुकेशन के स्पेस में हमने ये डिवाइस बनाया। फिर कोरोना के समय एक्चुअली जब हमें ये रियलाइज़ हुआ, 2020 की बात है, कि काफ़ी सारे लोग जो थे वर्क फ्रॉम होम करने लगे। अब वर्क फ्रॉम ऑफिस में तो ठीक है, एक बार प्रिंटेड डॉक्यूमेंट आया, किसी ने कीबोर्ड के नीचे रखा, सुन लिया क्या लिखा है, ड्राफ्ट किया, रिप्लाई और भेज दिया। बट काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स थे सेम लाइब्रेरी में गए, कीबोर्ड के नीचे, डिवाइस के नीचे रख के पढ़ लिया। बट जब कोरोना आया उस टाइम पर एजुकेशन ऑनलाइन चला गया और जो ऑफिस वर्क था वो वर्क फ्रॉम होम में कन्वर्ट हो गया। हम्म। तो काफ़ी सारे हमें रिक्वेस्ट आने लगे कि अभी साइटेड बच्चों के लिए तो टीचर जो थे वो नोट्स को स्कैन करके कैम स्कैनर की ऐप से भेजते थे भेज या। रहे हैं पीडीएफ की फॉर्म में, या कोई पीपीटी भेज दी। तो एक ब्लाइंड बच्चे के लिए वो कंटेंट जो है, स्पेशली एक ऐसा हम्म। पीडीएफ जो कि स्कैन करके बनाया गया है, वो एक्सेसिबल नहीं होता। फ़ोन में हम्म। भी नहीं, लैपटॉप पर भी नहीं। तो किस तरह से हम एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाएँ जिस पे कोई भी पीडीएफ आता है, चाहे वो किसी के ऑफ़िस का कोई ऑफ़िशियल डॉक्यूमेंट है या किसी स्टूडेंट को टीचर के द्वारा भेजे गए नोट्स हैं, उनको वो अपलोड करके, चाहे वो किसी भी भाषा में हैं, वो सुन सकें। उसको ऑडियो में ऑडियो बुक बना सकें कि ट्रैवल करते हुए वो सुन पा रहे हैं, या ओ। उसको डाउनलोड कर सकें, ट्रांसलेट कर सकें। तो इस तरह से हम ऐसा चाहते थे कि जैसे अभी के टाइम में देखें तो ब्रेल काफ़ी ऑलमोस्ट 10वीं तक बच्चों को ब्रेल से पढ़ाया जाता है। लेकिन यदि अगर 10वीं के बाद कोई ब्लाइंड होता है या उसको ब्रेल नहीं सीख पाता है इतना अच्छे से, तो 10वीं के बाद जब हायर एजुकेशन में जाता है तो ब्रेल उनका हाथ छोड़ देती है एक तरह से। तो हम ऐसा कुछ बनाना चाहते थे कीबोर्ड के माध्यम से कि वो उनको अर्ली ग्रेड एजुकेशन में भी हेल्प करे, सेकेंडरी एजुकेशन में, हायर एजुकेशन में, साथ ही साथ उनके एम्प्लॉयमेंट तक उनका साथ दे और साथ ना छोड़े। वेरी गुड वे। ये अभी दीपाली का क्या उसने व्हाट हैज शी कंप्लीटेड और शी स्टिल लर्निंग? शी एक्चुअली जस्ट अभी एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ है एक्चुअली इसके बारे में। तो दीपाली ने अपनी ग्रेजुएशन तो कंप्लीट कर ली, उसके बाद उसने ट्रेनिंग ली कंप्यूटर की एंड फिर जॉब ढूँढने लगी, एंड उसे एक कंपनी में जॉब मिली जहाँ पे उसने 8 महीने करीबन काम किया एज़ अ कस्टमर सपोर्ट पर्सन। एंड उसके 8 महीने बाद दीपाली का एक दिन ऐसी, हम बात तो करते ही रहते थे, तो हाँ दीपाली का एक हाँ। दिन फ़ोन आया कि दीदी अभी मैं सोच रही हूँ जॉब चेंज करनी है, तो कोई हम्म। आपकी नज़र में कोई अच्छी जॉब हो तो बताना, और मेरा रिज़्यूमे भी मैं आपको भेज दूँगी, आप देख लेना। तो मैंने जब उसका रिज़्यूमे देखा, उसका एक्सपीरियंस देखा, तो मैंने कहा दीपाली अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो तुम हमारे साथ क्यों नहीं जुड़ जाती? अरे तुम वाह। कीबो हाँ में आ हाँ। जाओ। तो ओ। दीपाली इस बात से बहुत खुश हुई। हमने उसका मतलब इंटरव्यू लिया एंड सब प्रोसेस के बाद शी वाज़ लाइक बहुत खुश थी वो। और अभी 24 नवंबर 2022 में उसने ट्रेसल लैब्स की वो टीम को जॉइन किया है। तो अभी उसे ऑलमोस्ट 2 महीने करीब हुए हैं, एंड वो काफ़ी काफ़ी ज़्यादा खुश है, मतलब इस चीज़ को लेकर कि कब मैं पहले मैं टेस्टिंग करती थी, मैंने 2017 से आपकी वो जर्नी देखी है और आज मैं इसका हिस्सा बन चुकी हूँ। और अभी जस्ट हम लास्ट महीने मेरी दीपाली से बात हो रही थी, तो वो कहने लगी कि अब मैं ना बस चाहती हूँ कि मेरी जॉब कंटिन्यू रहे। मैं ना अपने मम्मी-पापा के लिए एक घर खरीदना चाहती हूँ, ताकि ओ। उन्हें रेंटेड घर में ना रहना पड़े। मैम। ओए। और वो सुन के मुझे लगा कि जब हम एक ब्लाइंड व्यक्ति को एक सोर्स ऑफ इनकम प्रोवाइड करते हैं, उसको अच्छे से पढ़ाकर और उसको एम्प्लॉयमेंट देके, तो हम सिर्फ़ उसका मनोबल नहीं बढ़ाते, हम उसकी पूरी फैमिली का फाइनेंशियल स्टेटस बढ़ा सकते फाइनेंशियली। हैं। उसका पर्सनल जो सेल्फ एस्टीम है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, उसको आगे बढ़ाते हैं। तो सिर्फ़ हम एक व्यक्ति की नहीं, हम उससे जुड़े हुए सभी लोगों की ज़िंदगी जो है जिंदगी। प्रभावित करते यस हैं। यस। दैट्स अ ग्रेट यू नो जॉब एंड वर्क इंडीड। एंड आई एम श्योर इसका जो सेटिस्फैक्शन जो है वो आपने करोड़ों रुपए भी मिला अर्न किए, उससे ज्यादा आपने ये जो दीपाली का जो लाइफ बना दिया है उसमें है। सो दिस कीपो द TCS incubator to Kibo, or rather, I think
your Trestle Lab, that's the name of your startup, right? तो वो Correct. कैसे हुआ? जर्नी की बात करें तो शुरू के 18 महीने हम डिजिटल इम्पैक्ट स्क्वायर टीसीएस फाउंडेशन इनिशिएटिव के साथ नासिक में काम कर रहे थे। 6 महीने करीब हमने लोगों से बातें की, जाना, समझा। उसके अगले 6 महीने हमने प्रोटोटाइप बनाया एंड फाइनली जनवरी 2017 में शुरुआत हुई थी और पहले 12 महीने हमें सीखने, समझने में और बनाने में लगे। और 2018 में जैसे मैंने बताया 4 जनवरी को लुई ब्रेल डे के दिन हमने कीबो को लॉन्च किया। उसमें तब हमने सिर्फ एक 6 महीने का छोटा-सा पायलट किया था यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र ओपन यूनिवर्सिटी और नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड नासिक के साथ। और वहीं से 6 महीने के अंदर हमें काफ़ी लोगों के फ़ोन आने लगे। नासिक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हमारा पहला सरकारी ऑर्डर था। साथ ही साथ वी आल्सो गॉट कॉल फ्रॉम आईआईएम अहमदाबाद एंड दे Oh. सेड कि मतलब ऐसा इंडिया में पहला एक डिवाइस आया जो मराठी पढ़ता है, तो हम्म। हमें वो चाहिए। तो अच्छा। वहाँ से हमें लगा कि हमने ऐसा कुछ बनाया है जो अभी तक दुनिया में अवेलेबल नहीं था। क्योंकि ओ। अभी तक इंडिया में सभी ब्लाइंड के लिए जो डिवाइसेस आते थे वो सब यूएस या यूरोप से इंपोर्ट किए जाते थे और वो केवल इंग्लिश या फिर लैटिन बेस्ड लैंग्वेजेस ही पढ़ते थे। तो पहली बार ऐसा हुआ कि इंडियन लैंग्वेजेस के लिए कुछ इनिशिएटिव लिया गया है। तो काफी अच्छा हमें वहां से रिस्पांस मिला एंड अराउंड अगस्त 2018 में हमने करीबन 12 पहले बनाए हुए जो डिवाइसेस थे वो हमने सेटअप किए अलग-अलग मतलब संस्थाओं में आईआईएम अहमदाबाद, नासिक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, वाईसीएमओयू में भी उनके सभी सेंटर्स में 7 सेंटर्स में हमने डिवाइसेस लगाए। तो काफ़ी मतलब लगा कि अभी हम इसको और आगे बढ़ा सकते हैं। एंड वहाँ से फिर हमने डिजिटल इम्पैक्ट स्क्वायर अगस्त 2018 में हमने जो हमारा 18 महीने का सपोर्ट था उनकी तरफ से वो खत्म हुआ और फिर हम आईकेपी ईडन जो बैंगलोर में एक संस्था है उनकी एक इंक्यूबेशन सेंटर है उनकी तरफ से हमें डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का निधि प्रयास ग्रांट मिला जिसकी मदद से हमने जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग थी डिवाइस को लेके क्योंकि अभी तक हम जो 12 पहले बनाए वो नासिक में लोकली मैन्युफैक्चर किए थे। फिर हमें लगा कि अभी हमें मैन्युफैक्चरिंग स्केल लेवल पे करनी होगी, तो हमने उस ग्रांट की मदद से अपनी स्केल मैन्युफैक्चरिंग एस्टैब्लिश किया पूरा प्रोसेस एंड 6-8 महीने के उस प्रोसेस के बाद हमने फाइनली जुलाई 2019 में कीबो को मतलब एज़ अ डिवाइस या एज़ अ ऐप फुल एंड फाइनल लॉन्च किया। अभी मतलब वहाँ से लेके अभी जस्ट लास्ट 2022 में 30 नवंबर को हमने 5 साल कीबो के जो है कंप्लीट कंप्लीट किए। किए। जी, तो या। वहाँ पर मतलब वो सफ़र कहाँ डिजिटल इम्पैक्ट से शुरू होकर यहाँ तक पहुँचा कि वो अभी 70,000 ब्लाइंड व्यक्तियों को कीबो जो है वो एम्पावर कर पा रहा है। एंड अराउंड इंडिया में हम देखें तो 500 से ज़्यादा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, ऑफिसेज़ हैं जहाँ पर कीबो जो है यूज़ हो रहा है। सारे आईआईटी, एनआईटीज़, इवन आईआईएम्स तो सारे सभी कॉलेजेस का काफ़ी हमें सपोर्ट भी मिल रहा है कि हाँ, ऐसा कुछ है तो हम बच्चों को बेटर एजुकेशन दे पा रहे हैं या एम्प्लॉइज़ कहते हैं कि हमारे एम्प्लॉयर कहते हैं कि हमारे एम्प्लॉइज़ की प्रोडक्टिविटी इसकी वजह से बढ़ रही है। तो वो एक कौन से काफ़ी एक एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी, कौन से एम्प्लॉयज की प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है? तो इसका कोई एप्लीकेशन, जनरल एप्लीकेशन भी है क्या कीबो का? जी, तो इसमें हम 2 एम्प्लॉइज़ का मैं एग्ज़ाम्पल दे सकती हूँ। हम्म। एक हैं जितेंद्र जी जो इंडियन रेलवेज़ में काम करते हैं और वो ब्लाइंड हैं। जब वो वहाँ पे जूनियर क्लर्क की तरह काम कर रहे थे एंड उनको ज़्यादातर लोग ठीक है आप फ़ोन उठाना है, बात करनी है तो टेलीकॉलिंग वाला उनका काम ज़्यादा हम्म। रहता था। देन जब ही गॉट कीबो एंड ही टूक इट टू हिज़ ऑफिस एंड सब आए उनके टेबल पे कि व्हाट इज़ इट आप क्या लेके आए हैं? तो फिर जब वो अपना कोई भी पेपर आता था, उसको स्कैन किया, फटाफट से उसको पढ़ लिया कि इसमें क्या लिखा है। फिर उनके ऑफ़िस के बाकी लोग उनके पास आने लगे, "अरे भाई तुम इसको हमें भी वर्ड फ़ाइल में एडिटेबल बना के दो ना। अच्छा इसका ओके। ट्रांसलेशन करके दो ना, हमें भी काम आएगा।" तो ओहो। वो उनका जो जॉब था, वो फ़ोन उठाने वाली चीज़ से लेकर कहाँ अभी ऑफ़िस में सब आके उनकी जो है उनसे हेल्प ले रहे थे। तो ओके। वो उनके लिए उनका फ़ोन आया ये बताने के लिए, तो हमारे लिए था कि चलिए आप मतलब आप जो कर पा रहे थे उससे आप कहीं ज़्यादा कर पा रहे हैं एंड लोगों की आपसे एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई हैं क्योंकि जनरली सब एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो मतलब कम रखी जाती हैं एक डिसेबल्ड व्यक्ति से। और 2 और एग्ज़ाम्पल मैं अगर कहूँ तो ये एक ही हमारे प्रोफ़ेसर हैं जो कि आईपी यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। उनका फ़ोन आया, उनका हमने
मुलाकात तो काफ़ी पहले हुई, फिर उन्होंने हमारा प्रोडक्ट यूज़ करना शुरू किया। फिर एक दिन उनका फ़ोन आया, कह रहे कि लास्ट ईयर तक यानी पिछले साल तक मैं अपने कलीग्स को बोलता था कि भाई तुम्हारे पेपर चेक हो जाएँ तो तुम थोड़े मेरे कर देना, मेरी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। पर अभी कीबो की मदद से मैंने सब स्कैन करके खुद से पढ़ के अपने जो हैंड रिटन आंसर शीट थी बच्चों की वो तक चेक कर दी हैं। और अब मैं बाकी टीचर्स से पूछ रहा हूँ कि मेरे तो हो गए सब पेपर चेक, तुम्हें कोई हेल्प चाहिए तो मुझे बताना। अच्छा, अच्छा। तो वो आपका एक जो शिफ्ट है। कीबो जो है वो एक ट्रांसलेशन मशीन के से भी काम करता है। वेरी गुड, फैंटास्टिक। तो तो वो अभी आई थिंक जी, ये आपका जो अभी जो स्टार्टअप है क्रिस्टल ट्रिस व्हाट टेस्ला सॉरी लैब्स ट्रिसल लैब। तो ये स्टार्टअप जो है वो कितना, यू स्टार्टेड इन 2019 राइट? 17 2017, so it's जी। almost 6 years हाँ, अभी जस्ट old. 5 साल कंप्लीट हुए Yeah, 30 and you have नवंबर been 2022 mentioning से। कि हमको लगा, so is the team which work in your BTech project, is the same team continuing और उसमें और कुछ दूसरे लोग आए हैं? नहीं, नहीं हम्म, बीटेक की जो टीम थी आई थिंक मतलब क्या होता है एज़ इंजीनियर्स हम काफ़ी सारी चीज़ें करना चाहते हैं एंड हम्म, सभी लोगों का सपोर्ट नहीं मिल पाता चीज़ों को एक कॉलेज प्रोजेक्ट को आगे ले जाने में। तो आई थिंक कॉलेज के बाद मैं अकेली ही थी जो इस प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करना चाहती थी जब मैं साथी डिजिटल थी, इम्पैक्ट स्क्वायर में आई। बाकी सब आईटी कंपनी में लग गए। कोई मास्टर्स के लिए चले गए, कोई आईटी कंपनी में लग गए। तो वहाँ ओके, से ग्रेट। मतलब एक डायरेक्शन चेंज हुआ। बट जब मैं कहती हूँ कि हमने सोचा तो डिजिटल इम्पैक्ट स्क्वायर में जब वो 40-50 बच्चे जो वो हर साल सिलेक्ट करते हैं, उनमें वो देखते हैं कि ठीक है, अगर अलग-अलग कैपेबिलिटी के लोग एक टीम में रहें, जैसे मैं सॉफ्टवेयर से हूँ, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स से, कोई एमबीए से, कोई डिज़ाइन से, तो इस तरह से सब अगर एक साथ काम करेंगे तो कुछ अच्छा सॉल्यूशन अच्छा। निकल के आएगा। तो वहाँ पर जब मैंने अप्लाई किया तो मुझे पता चला वहाँ पे एक टीम वो लोग एक चैलेंज पे वर्क कर रहे थे जो कि था एक एक्सेसिबल एनवायरनमेंट बनाना ब्लाइंड लोगों के लिए। तो मेरा प्रोफाइल देख के उन्होंने मुझे इमीडिएटली उस प्रोजेक्ट के लिए सिलेक्ट कर लिया और वहाँ पर मुझे मतलब हमारी टीम में लगभग 5 लोग थे और फिर ऐसा होता है कि एक जर्नी स्टार्ट होती है बट कुछ लोग निकल जाते हैं और कुछ लोग रहते हैं। तो मी एंड माय को-फाउंडर बॉनी वी हैव लाइक स्टेयड द कोर्स डिजिटल हम्म, इम्पैक्ट स्क्वायर से लेके आज के दिन तक का। और उसके बाद काफ़ी लोग हमारे साथ जुड़े, कुछ लोग आए, कुछ लोग आधे रास्ते में छोड़ के चले गए, कुछ अच्छा लोग तो जस्ट अभी जुड़े हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 3-4 साल से हमारे साथ हैं। तो ये एक जर्नी मतलब ऐसी रही है कि लोग जुड़ते गए और फिर हमारा कारवां चलता आगे चला बढ़ जा के रहा है। गया। जी, यू ऑपरेट फ्रॉम बैंगलोर राइट? जी, राइट। एंड अभी आपका जो क्रिस्टल लैब है वो कितना बड़ा है? हाउ मेनी पीपल आर वर्किंग विथ यू? अभी से हमारी टीम में 15 लोग हैं, जिसमें से अच्छा। 10 फुल टाइम एम्प्लॉइज़ हैं, 5 इंटर्न्स हैं एंड 2 कंसल्टेंट्स भी हमारे साथ नीड अच्छा, बेसिस पे अच्छा। काम करते हैं। तो अराउंड 15 लोग हैं टोटल हम। बट हमारी टीम पूरी रिमोटली काम करती है। तो कोविड से पहले हम सब ऑफ़िस से काम करते थे बैंगलोर में, बट आज हमारे जितने भी 15 लोग हैं सब भारत के दो अलग-अलग मतलब स्टेट्स से हैं। तो और वो सब ऑनलाइन ही काम करते हैं बट काफ़ी इफ़ेक्टिवली और एफ़िशिएंसी के साथ पूरी ज़िम्मेदारी से काम करते हैं। तो मतलब अगर हमारी टीम नहीं होती तो शायद आज हम यहाँ पे बिल्कुल अच्छा नहीं जी। होते। इसका जो मैं मार्केटिंग नहीं बोलूँगा, लेकिन इसका जो अवेयरनेस है जो प्रोडक्ट का जी। और उसका ये जो है उसको आगे ज़्यादा से ज़्यादा जिनको विज़न नहीं है या कुछ प्रॉब्लम है उन लोगों तक ले जाने के लिए आप कैसे उसको ले आगे बढ़ा रहे हैं? बिल्कुल। तो सर अगर इंडिया में बात करें तो इंडिया में हमने एनजीओज़ के साथ पार्टनर किया, जो कि हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी, साथ-साथ ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। तो एक स्टूडेंट जो है अर्ली ऑन उस सब चीज़ों के बारे में सीख सकता है। उसके अलावा हमने पार्टनर किया जैसे असिस्टिव टेक्नोलॉजी के डिस्ट्रीब्यूटर्स आते हैं। तो हुँ, अ, हुँ। व उन वो उनके पास ऑलरेडी काफ़ी सारे कनेक्शंस रहते हैं कि किस कहते तरह हैं। से असिस्टिव टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट्स को डिसेबल्ड व्यक्तियों तक पहुँचाया जा सके, तो वो एक माध्यम से हम जाने लगे। उसके अलावा हम अपनी तरफ से डायरेक्ट आउटरीच और जो है रीच आउट करते हैं अलग-अलग कॉलेजेस को, स्कूल्स को, क्योंकि आज की बात करें तो अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में सीबीएसई, नैक, यूजीसी, एमएचआरडी सभी की गाइडलाइंस में ये चीज़ है कि एक अगर तुम ब्लाइंड स्टूडेंट को एनरोल कर रहे हो या एम्प्लॉय कर रहे हो, तो उनके लिए जो आपके पास टूल्स होने चाहिए कि वो स्कैन करें या ऑडियो में पढ़ें, किसी भी माध्यम से उन तक एक्सेस मिले। तो वो अपने ओके। लेवल पे भी हम रीच आउट करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू लोगों तक बात पहुँचाते हैं।
और काफ़ी सारे इवेंट्स रहते हैं, जैसे एजुकेशन रिलेटेड कॉन्फ्रेंसेस हैं या लाइब्रेरी रिलेटेड इवेंट्स हैं। तो वहाँ पर भी जाकर हम बताते हैं कि आप कैसे अपने स्कूल या कॉलेज की लाइब्रेरी में इसे लगा सकते हैं, ताकि स्टूडेंट्स ब्लाइंड स्टूडेंट्स के लिए तो इफ़ेक्टिव है ही, पर साइटेड स्टूडेंट्स भी आजकल ऑडियो बुक्स के माध्यम से पढ़ते हैं, तो उनका प्रोनंसिएशन, स्पीकिंग, लिसनिंग स्किल्स वो सभी इम्प्रूव होता है। ओवरऑल मतलब उनका ओके। कम्युनिकेशन इम्प्रूव होता है। तो उस तरह से हम अलग-अलग ज़रिए से इंडिया में रीच आउट करते हैं। इंडिया के बाहर अभी हम 8 और देशों में एक्सपोर्ट करते हैं प्रोडक्ट को। तो वो जो एक्सपोर्ट का है वो हम सिर्फ़ पार्टनर्स के थ्रू करते हैं। दैट मीन्स वी हैव डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स हू uh, spread awareness about our product in their area, in their country, and then they help us reach out to those people as well. फैंटास्टिक। अगर समझ लीजिए आप जो बोल रहे हैं कोबो, ये क्या Kibo. सिस्टम है? कीबो, सॉरी कीबो, वो क्या सिस्टम है या कुछ ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट है? व्हाट, जी। क्या उसका ये है? तो जैसा मैंने कहा कि वो में 3 चीज़ें आती हैं, 3 प्रोडक्ट्स हम्म, आते हैं। एक है मोबाइल एप्लीकेशन जो लाइफ़स्टाइल के काम आता है। जब मैंने एक्सपोर्ट्स की बात की तो मैंने कीबो एक्सेस डिवाइस की बात की, जो कि एक टॉकिंग टेबल लैंप जैसा डिवाइस है, एआई पावर्ड, जो कि कोई भी हम्म, कंटेंट को ऑडियो में कन्वर्ट करता है। एंड कीबो का जो तीसरा प्रोडक्ट है वो है कीबो डेस्क, जो कि एक वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर है, जो कि पीडीएफ या इमेज फाइल्स को कन्वर्ट करता है। तो ओके, एक्सपोर्ट्स जो हैं उसके लिए वो जो मैंने बोला तो वो कीबो एक्सेस डिवाइस के लिए था, और जो मोबाइल ऐप है और वो सॉफ्टवेयर है, जो कीबो डेस्क सॉफ्टवेयर है, वो विश्व भर में अराउंड 25 कंट्रीज में यूज़ हो रहा है एंड अराउंड वो 70,000 से ज़्यादा यूज़र्स उसको यूज़ कर रहे हैं। वेरी गुड। अगर समझ लीजिए एक आधा ट्रस्ट है एंड who wants to do some work for a blind school or something and they want to get your system, what kind of expenditure they will have to incur to install this system in a blind school? श्योर। तो अगर कोई सपोर्ट करना चाहते हैं किसी ब्लाइंड स्कूल को, तो अगर वन टाइम कॉस्ट पे करके वो लेना चाहें, तो वो 49,350 यानी 49,350 रुपए इंक्लूडिंग टैक्सेस में ये सिस्टम किसी भी संस्था में सेटअप कर सकते हैं। इसके Very good. साथ 1 साल की वारंटी और लाइफ टाइम का सॉफ्टवेयर लाइसेंस रहता है और हमारा सपोर्ट तो रहता ही है। It's very reasonably priced, I should say. और इसका जो उपयोग है, how many students or how many people can use that? एज़ मेनी आई मीन हम As चाहते हैं many. ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका यूज़ करें। अच्छा, तो एक इंस्ट्रूमेंट, एक सिस्टम लेंगे तो उसके ऊपर जी, सब बच्चे अपना यूज़ पढ़ कर सकते सकते हैं, हैं। सीख सकते हैं, ऑल दैट। वेरी गुड। तो ये जो आपका कार्य है बहुत ही महान है एंड आई थिंक उसके वजह से आपको वर्ल्ड वाइड रिकग्निशन मिली है एंड आई सॉ द लिस्ट ऑफ अवार्ड्स एंड फेलोशिप which you have received. And I was also surprised that we always, listen and see World Cup cricket and World Cup football, but World Cup, entrepreneurial World Cup, I think you are the winner for 2 times for India. Could you tell something about that too? श्योर आई थिंक डेफिनेटली जो मतलब ऐसा ऐसा है कि अच्छा काम करो तो इंटरनेशनल और नेशनल रिकॉग्निशन सामने आते हैं और लोगों का सपोर्ट भी मिलता है। तो आई थिंक मोर देन द अवार्ड्स द सपोर्ट दैट कम्स विद इट इज व्हाट इज रियली इम्पोर्टेंट फॉर अस टू स्केल द इम्पैक्ट अक्रॉस द वर्ल्ड। तो Mm-hmm. एंटरप्रेन्योरशिप वर्ल्ड कप है जिसमें मतलब हम उसके फाइनलिस्ट रहे हैं, एंड Mm-hmm. उसके साथ साथ और भी इंटरनेशनल रिकॉग्निशंस जैसे रॉयल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग लंदन, उन्होंने हमें एक फेलोशिप प्रोवाइड की, लीडर्स इन इनोवेशन फेलोशिप, जिसके माध्यम से Mm-hmm. हमें काफ़ी सपोर्ट मिला वहाँ के Mm-hmm. मेंटर्स का, वहाँ के एक्सपर्ट्स का। Mm-hmm. एंड अभी यूएस में रिसेंटली एक फेलोशिप है हाल्सियन इनक्यूबेटर की तरफ से, जिसमें वो सोशल एंटरप्रेन्योर्स को जो है आगे बढ़ने के लिए मेंटरशिप, गाइडेंस, कनेक्शंस प्रोवाइड करते हैं। तो ये दोनों सपोर्ट तो रहे ही हैं एंड रिसेंटली अभी जस्ट लास्ट सितंबर में हमें सपोर्ट मिला है वन यंग वर्ल्ड का। तो वन यंग Mm-hmm. वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में हमें रिकॉग्नाइज किया कि किस तरह से कीबो की मदद से एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में जो है काफ़ी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो रही हैं लाइवलीहुड की एक ब्लाइंड Mm-hmm. व्यक्ति के लिए। तो Mm-hmm. उसके साथ-साथ अभी मोस्ट रिसेंट था जो एमआईटी सॉल्व, एमआईटी हर साल एक इवेंट करवाते हैं जिसमें वो देश भर से
कंपनीज को चूज करते हैं। तो वो इवेंट इस साल जैसे न्यूयॉर्क में रहा, तो उन्होंने पूरे विश्व में से 8 कंपनीज को चुना एजुकेशन की फील्ड में जो अच्छा काम कर रहे हैं, और उन 8 में और से उसमें एक जो है कि आपका वो भी आपका नंबर था। चुनी गई Is थी। that the same, that what is that Halcyon fellowship or something, or that is different? दैट इज डिफरेंट। सो Okay. हेल्सन फेलोशिप वॉशिंगटन डीसी में थी। वो एक Uh, करीबन 5 महीने की फेलोशिप थी, जिसमें हमें ट्रेनिंग प्रोवाइड की गई अपने सोशल एंटरप्राइज को ग्रो करने के लिए। एंड एमआईटी सॉल्व के थ्रू हम जो एमआईटी का पूरा इकोसिस्टम है, यानी मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कैसे वहाँ पे उनके मेंटर्स या वहाँ के एक्सपर्ट्स को हम कनेक्ट कर सकते हैं, और उनके सपोर्ट से हम अपने इम्पैक्ट को कैसे स्केल कर सकते हैं विश्व भर में। so last, I think more than 1.5 year, you have been, busy with these kind of training and projects and all that. And now I think you're back to your own just a lab. So what are your future plans? What you want to do and where you want to go? Absolutely. I think in these regards, we have seen the two areas, or rather 3 areas, जिसमें we are really focused on right now, is to make our technology available and accessible for people across countries. And उस case में sometimes we have to add a specific language. जैसे अभी recently this year we are focused on doing a project in Africa, जिसमें we'll be working across Kenya, Rwanda, and even Tanzania, where we'll be deploying Kibo and seeking the feedback of the users there. So वो एक project है जिसमें हमें technology को उनके लिए improve करना है, यानी उनकी जो स्वाहिली उनकी regional language है, वो हमें Uh-huh. Kibo में add करके उन्हें provide करनी है। तो जिसपे हम अभी Okay. काम almost हो चुका है। तो वो एक चीज है जिसपे मतलब हम काफी keen है कि ज्यादा से ज्यादा languages को हम support कर सकें technology के field में, एंड अपने टेक को इम्प्रूव कर सके, एनहांस कर सके, ताकि वर्ल्ड वाइड हम जो है बेनिफिशरीज को सपोर्ट कर सकें। सेकंड एरिया जिसमें हम वर्क कर रहे हैं, जो ऑलमोस्ट अभी काफी अच्छा चल रहा है, विच इज आवर टीम। तो अभी रिसेंटली जनवरी में जब हमने अपना हायरिंग फेज कंप्लीट किया, तो काफी नए टीम मेंबर्स हमारे साथ जुड़े, और बहुत ही मोटिवेटेड और एकदम ओनरशिप और जिम्मेदारी के साथ अपना काम करने वाले। तो अगर ऐसे लोगों का साथ हो, तो मतलब आप दुनिया जीत सकते हो। और हमें Okay. तो लोगों की जिंदगियां बदलनी है, तो हमें ऐसे ही लोगों की जरूरत थी। एंड लास्ट पार्ट जिसपे अभी हम बहुत कीनली वर्क कर रहे हैं, दैट इज पार्टनरशिप्स। तो इंटरनेशनली भी हम डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ, एनजीओज के साथ, फिलैंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशंस के साथ पार्टनर कर रहे हैं, कि किस तरह से कि वो उसका इम्पैक्ट सिर्फ इंडिया में ही नहीं, बल्कि हम विश्व भर में वो ले जाए. मेड इन इंडिया और मेड फॉर द वर्ल्ड वाला Oh, कॉन्सेप्ट है। that's good. Yeah. तो किस तरह से हम पूरे विश्व भर में कीबो का इम्पैक्ट जो है स्केल कर सकें, कि कल को अगर मैं किसी अफ्रीका के स्कूल के बाहर खड़ी होकर देखूं कि वहां बच्चे कीबो से पढ़ रहे हैं, तो वो Mm-hmm. मेरे लिए एक ऐसा रहेगा कि हमने ना सिर्फ इंडिया के लोगों के लिए, बल्कि पूरे विश्व भर के ब्लाइंड और विजुअली डिसेबल्ड स्टूडेंट्स और वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए कुछ बदलाव ला पाए हैं। Mm-hmm. And then, no, this, you know, that's good that it's some of the trust or social enterprises, they want to get associated with you. They are welcomed by you, and, with them, I know both of the institution and your trust lab can do a great job. And you have won, while I was going through the list of awards and fellowship you have received, I think I found all leading companies and leading, institutions of the world, like, the Pune International Center, NASCOM, then Accenture, and then Microsoft, Imagine Cup, and the whole list. This list, I'm sure it's available on your website, right? And those of us who are interested, they can certainly get more information on your product and your organization from your website, right? And एब्सोल्युटली। तो हमारी वेबसाइट है TRESTLELABS.com, tresellabs.com। तो दैट इज वेयर, जिसमें आपको न सिर्फ कीबो के बारे में, बल्कि अवार्ड्स और सभी चीजों के बारे में काफी जानकारी मिल सकती है। yes. And one more thing, as Visha wanted, that yours is a social enterprise, and it's for a not-for-profit enterprise. How इट्स अ did फॉर you? प्रॉफिट, It's a for-profit. Okay, no,
No problem. But did you get any outside funding, and did you procure some funds from some venture capitalist or some angel investor or some institution, something like that, for your company and the project? श्योर। तो कीबो के केस में जब हमने स्टार्ट किया तब से वी वांटेड कि हम एक फॉर प्रॉफिट वेंचर रन करें ताकि वो चैरिटी पे नहीं अपने प्रॉफिट्स के थ्रू रन कर पाए और हम इस इम्पैक्ट को स्केल कर पाए और हमारी जो That's डिपेंडेंसी है organic वो ना growth. रहे। यस। और अभी 5 साल से हम मतलब कि वो एक बूटस्ट्रैप ट्रेसल लैब्स एक बूटस्ट्रैप्ड वेंचर रहा है एंड हमने मतलब जो सेल्स के थ्रू रेवेन्यू आया या हमें जो ग्रांट्स और फिलांथ्रोपिक सपोर्ट मिला उसके थ्रू हमने उसे स्केल किया है। अभी तक हम मतलब बूटस्ट्रैप्ड होने के कारण हम मतलब अभी हम किसी भी हमने इन्वेस्टर से या वीसी से जो है फंडिंग नहीं ली है, बट हमें काफ़ी अच्छी-अच्छी ऑर्गेनाइजेशन जैसे प्रोसूस है, डीबीएस फाउंडेशन है, एमआईटी सॉल्व है या सैंटिन है, इन सभी के थ्रू इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से हमें बायरैक का, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का और हमारे स्टार्टिंग के जो लोग रहे हैं यानी पुणे इंटरनेशनल सेंटर, टीसीएस फाउंडेशन, उन सभी का हमें जो सपोर्ट मिला है उसके थ्रू हम काफ़ी चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करते हुए, स्केल करते हुए आज यहाँ तक पहुँचे हैं। तो आई थिंक अभी तक हमने इन्वेस्टमेंट नहीं लिया है एंड वी हैव बीन अ बूटस्ट्रैप्ड बट प्रॉफिटेबल वेंचर टिल नाउ। Akshita, many people sometimes ask my age, and when I tell my age, they tell me that doesn't matter. Age is just a number. I'm going to ask you your age. If you don't want to answer that, don't answer. But for me, your age definitely matters because at a very young age, you have achieved something which many of us just dreamt about it. Please. So I think I told my birth date initially. So I was born in 1994. तो अभी मेरी एज 29 years है। Oh, great. जब मैंने इस डायरेक्शन में काम करना शुरू किया that was 2015. तो अभी उस बात को भी 8 साल हो चुके हैं। तो I Very started good. when I was 22 और अभी 29 years की हूँ मैं। Akshita, I have a hobby or something when I come to know about some name and all that, and when I saw your name Akshita, do you know the meaning of Akshita? Akshita is something permanent which cannot be dislodged. So Yeah. I'm sure your enterprise, your work is there to stay permanently, and you are going to scale higher and higher heights. And at the at large, the society is going to get benefited by your great work. So I wish you all the best, and I thank you very much for joining me and having a chat with me. Very interesting. I feel very motivated. I am 100% sure that those who will see this video, those who will listen to your talk and all that, they will feel motivated too to do something for the society at large. Thank you very much, and we will meet sometime again to know about your progress later. Thank you very much. Thank you so much, sir, for your wishes and blessings. मंडळी, तुम्हाला आजची ही जी बातचीत आहे अक्षिता सचदेवा बरोबर नक्कीच खूप इंटरेस्टिंग वाटली असेल, आणि मला तरी याच्यातून खूपच स्फूर्ती आणि मोटिवेट मी झालेलो आहे. तसेच तुम्ही पण व्हाल आणि असंच काहीतरी एखादं चांगलं कार्य करण्याचं तुम्ही निश्चित कराल असं मला नक्की वाटतं. तुम्हाला हा जर व्हिडिओ आवडला असेल, ही बातचीत आवडली असेल तर नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि जी बेल आयकॉन आहे त्याच्यावर क्लिक करून सबस्क्राईब करायला विसरू नका. थँक्यू व्हेरी मच.